Hi guys, am I clearly audible? Garv, Abhimanyu, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So I sent the PDF yesterday in the group. Did you check it out? Did you go through it? कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ आया? Yes guys, before I begin whatever I've planned for today, just बता दो कि समझ आया है, कुछ चाहिए और डाउट सॉल्व करने होंगे तो. I'm guessing it's a no. चलो, कहाँ तक हमने किया था? हमने ये कवर नहीं किया शायद. हमने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, राइट? वी डिड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वी डिड अकाउंटिंग इक्वेशन yesterday. I gave this as a homework. दोनों में से एक भी आंसर बता दो, चलो क्विकली. 4,000 profit, ma'am. 4,000 प्रॉफिट. ओके गर्व, आपका आंसर? 4,000. आई couldn't hear you गर्व. 4,000 profit. ओके, 4,000 प्रॉफिट. मैं एक बार पढ़ लेती हूँ. बिल is already set up 30,000. ओके, ड्यूरिंग द ईयर 50,000. ओके, paid 30 into the business. 60. He took cash drawings of 5,000 during the year. Okay. At 30th September, net assets of the business total 59,000. अच्छा, अभिमन्यु, how did you do it? ऐसा मुझे सिर्फ कैलकुलेशन में बता दोगे तो भी चलेगा. So can I say opening net assets या capital था 30,000, right? During the year he won, और उसने so capital introduced और 30,000, cash drawings of 5,000, and net assets year end पे थे 59,000. So closing net assets. Right, 30,000 took cash and 5,000, 59. हमने देखा था closing net assets is equal to opening plus capital introduction minus 5,000 and some profit. That would be 1655 and some profit. So correct guys, profit is 4,000. अच्छा, हमने ये पढ़ा टेक्निकल आर्टिकल, जो पढ़ा किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो एक बार. 4,000. Okay, good. So let's do the financial documentation. So हमने देखा quotation क्या है. So it's a document from the seller to establish the prices, right, from various suppliers. So you can choose कौन सा cost effective है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है. You can see all of that. When we saw purchase requisition, it is completed by an employee to request the purchase of goods and services by the entity. But क्या ये employee खुद दे सकता है क्या, या approve होना चाहिए? It should be approved, okay, by a responsible person. Then we have the purchase order. This is a document by the buyer. It is sent to the supplier as a request to supply goods.
वी सॉ परचेज ऑर्डर, वी सॉ सेल्स ऑर्डर. इसमें कोई भी डाउट? अ क्विक यस और अ नो. No. परफेक्ट, लेट्स गो अहेड. फिर हमने देखा व्हाट इज द डिस्पैच नोट. गुड्स डिस्पैच नोट ये सप्लायर इशू करता है जब वो गुड्स भेजता है. गुड्स रिसीव नोट कब होता है? इट इज बाय द कस्टमर. ही सेज कि मुझे अभी गुड्स मिल गए. ओके, आई हैव रिसीव्ड द गुड्स. दैट इज व्हेन ही सेंड्स दिस नोट. Okay. Then we have the sales invoice. It is issued by the supplier. He is requesting कि now you've received the goods. Now you have to pay me. So he is requesting for payment, right? That is sales invoice. Let's go ahead. ये these are the next documents that you're going to look at. चलो, पहला है purchase और supplier invoice. It is received by the customer. So I think we did this documentation too. It's fine. It is received by the customer as a request for payment from the supplier. The customer may allocate a sequential number to each purchase invoice received to aid recording and tracing of transactions. मतलब वो क्या बोल रहा है, ये इनवॉइस जो है ये सप्लायर सेंड करता है एंड कस्टमर कैन नंबर इट. सो नंबर 1, नंबर 2 ऐसे नंबर कर सकता है कि आई हैव टू पे 1 by this date, आई हैव टू पे 2 by this date. So it is easy to record and trace the transactions. कि have you paid on time? You can check all of this. फिर उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर, डिटेल्स ऑफ गुड्स, ये कंटेंट. सप्लायर स्टेटमेंट. इट इज इशूड बाय द सप्लायर. ये मैंने आपको बोला है, आपको इशू किसने बनाया है डॉक्यूमेंट और किसके लिए बनाया है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विथ व्हाई इज द डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टम. इट समराइजेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय सप्लायर इन द प्रीवियस month. The customer can use this to check against other documents to ensure that the amount demanded by the supplier is correct. Now tell me, customer के पास उसका खुद का record होगा जिसमें उसने सारे transactions जो भी उसने buy किया है for the month from the supplier उसने record किया होगा. And same way supplier के पास भी एक record होगा कि उस customer ने क्या क्या purchase किया है. Now is it going to be कि कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है कि the amount that is shown in the customer's records would be different than what is in the supplier's records? Yes. क्या ये डिफरेंट हो सकता है? मतलब कस्टमर के इसमें इट्स शोइंग कि आपने 100,000 की परचेजेस किए. सप्लायर के इसमें इट्स शोइंग कि आपने 100, कस्टमर ने 110,000 की सप्लाईज किए. इट कुड बी राइट. तो जब ये सप्लायर स्टेटमेंट कस्टमर को आता है, व्हेन द सप्लायर इशूज द स्टेटमेंट एंड द कस्टमर रिसीव्स इट, द कस्टमर कैन ट्रैक, दे कैन चेक वेदर जो भी वट एवर द मनी जो सप्लायर डिमांड कर रहा है, इज इट राइट, इज इट करेक्ट. Okay, so that is why supplier statement is important. It is needed for reconciliation. Reconciliation मतलब कि just to check both of those match, right? So supplier statement, this is a topic in FA that we are going to look at later. ये बहुत लेट आता है. It's around after 50-60% of the portion is over. एक टॉपिक आता है reconciliations जिसमें हम supplier statement reconciliation we are going to study. So इसमें details of the supplier, name, address, include details of date, invoice numbers, ये सब चीजें आ जाती हैं. Then we have the credit note. What is a credit note? Let's say, suppose I purchase some products. Okay, I purchase perfumes, not perfumes, I could say I purchase some shoes. Okay, I purchased some shoes, but I don't try them on. Okay, I don't try them on, I just purchase them and I go home and that's when I try them and I come to know कि it's a size small, मतलब एक size छोटा है, वो मुझे नहीं आ रहा है. So what do? I go to the shopkeeper and I say कि I need to return these because मुझे I'm not fit नहीं हो रहे, it's not a proper size. What will he give me? वो मुझे दो option देगा कि you can either purchase a larger pair, okay, a size larger, or what I'll give you is a credit note. Credit note का मतलब आप अभी कुछ purchase नहीं करो, मैं आपको एक सपोज शूज $1,000 के वर्थ थे तो मैं आपको $1,000 का क्रेडिट नोट देता हूँ. I'll give you $1,000 का क्रेडिट नोट. You can come
within 4-5 months and you can redeem this credit note. You can give this to me and 1000 की जो भी चीज़ आप लेके जा सकते हो. So that's a credit note. So in places like West Side, all of these places, Shoppers Stop, they give you a credit note. So issued by the supplier to the customer. It is checked against records of goods returned. तो इसमें सप्लायर का नाम, एड्रेस, contains details of the goods returned, मैंने क्या रिटर्न किया है, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, ये सब क्रेडिट नोट में आता है. So if a company buys raw materials, right, and they don't check the quality, but later on they come to know कि इसमें कुछ डिफॉल्ट है या कुछ गलत चीजें आ गई है, दिस इज नॉट व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड, तो वो सप्लायर को बोल सकते हैं कि यू हैव टू गिव मी अ क्रेडिट नोट, आई विल परचेज समथिंग एल्स इन द फ्यूचर. सो दैट्स अ क्रेडिट नोट. What's a debit note? Now debit note, so credit note, it is issued by supplier. ये याद रखना है. Debit note is issued by the customer या buyer. So produced by the customer, cross reference to the credit note subsequently issued by the supplier. तो ये कस्टमर इशू करता है आस्किंग द सप्लायर कि मुझे आप क्रेडिट नोट दे दो, आई एम रिटर्निंग द गुड्स टू यू. सो इट इज इशूड बाय कस्टमर टू सप्लायर आस्किंग फॉर क्रेडिट नोट. डिटेल्स ऑफ द सप्लायर हो गए उसमें एंड द कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न्ड. वेरी सिमिलर, बट फर्स्ट बायर इनिशिएट करेगा कि मुझे रिटर्न करना है गुड्स, आस्किंग फॉर अ क्रेडिट नोट, एंड देन सप्लायर विल गिव यू अ क्रेडिट नोट. Next is a remittance advice. What is a remittance advice? This is sent to supplier with or as notification of payment. Okay, मतलब suppose आपने पे कर दिया, the company has paid, so what they will send a remittance advice. ठीक है, they will send a remittance advice. उसमें they will say we've done NEFT, maybe we've done RTGS, maybe we've given a check, maybe just direct bank transfer. So they will tell you what is the mode of payment, right? What is the amount that we've paid to the supplier? So remittance advice में ये सब आएगा. So it is raised by the customer. It is raised by the customer and contains details of payment made to the supplier. The amount, the invoice, right? Amount number, date, etc. Then it's the receipt. अभी supplier को पैसे मिल गए, so they will issue a receipt. So it is issued by the supplier confirming the payment receipt कि मुझे पैसे मिल गए हैं, right? Details of payment receipt, उसमें कुछ होगा details of payment receipt कि how much we have received from the buyer. I think we are done. Documentation 4. Okay, this is fine. Okay, so these are the main documents. They can ask you MCQs on this. So I've prepared a MCQ, I've prepared some MCQs for you guys that I'll send later for you to solve. तो आप वो solve करना अच्छे से. Refer these notes, ये notes refer करो and solve it. ठीक है? So are these documents clear? Any document जिसमें आपको problem है या कुछ you want to understand more about it? Yes, Garv, Abhimanyu, कोई भी document में issues? No, ma'am. Okay. गर्व, आप कॉलेज में हो क्या? हाँ अभी कॉलेज में हूँ. ओके, ठीक है. तो हमने डॉक्यूमेंट्स कर लिए. ठीक है. Now this document, it is nothing but the supplier statement that I talked about before. जो हमने supplier statement बोला था, supplier statement सेम है, नाम अलग है बस. इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं. इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज सेंट बाय अ सप्लायर टू अ कस्टमर विद डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टीज. द स्टेटमेंट ऑल्सो हाईलाइट्स द बैलेंस ओड, मतलब कस्टमर को कितने पैसे देने हैं सप्लायर को, वो ये स्टेटमेंट में होगा at the end of the month. A statement of account contains sellers and customers name and address, invoice number, outstanding amounts and payments received.
क्रेडिट नोट इफ कुछ होगी तो उसके भी numbers and values would be included. The statements of accounts primary purpose is to support reconciliation, जैसे हमने बोला था कि आप ये सीखोगे, it is to support reconciliation of the suppliers account. तो स्टडी हब में, ACCA स्टडी हब में इट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. और जो कैप्लन की टेक्स्ट बुक है, आई विल इंट्रोड्यूस दिस टू यू वेरी सून, जस्ट लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल शो यू. उसमें इसको सप्लायर स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है. सो टू डिफरेंट टर्म्स विद द सेम मीनिंग, एसेंशियली द सेम. ओके. Now there's one more source that you can refer. It's the Kaplan study text. I hope you've heard about it. क्यों नहीं हो रहा? Okay, so this is what it looks like. ये कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट है, एसेंशियली अ टेक्स्ट बुक जो हम नॉर्मल हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं टेक्स्ट बुक. ये वैसी टेक्स्ट बुक है फॉर यू गाइस टू रेफर. सो आप ये भी रेफर कर सकते हो. सी दिस इज, मैंने यही से यूज किया है इसको, ठीक है. So the notes are from there. They are from Study Hub as well. So they are a mix. So you can use both the things. And also there's an exam kit from which we'll be solving questions. After we complete some substantial amount of portion, we'll be starting solving from there as well. Now, so आज we are moving on to the second step of our accounting basics. That is ledger. ठीक है, वो है ledger. Ledger account. We are going to see ledger क्या होता है, how we prepare ledger, हम journal entries ledger में कैसे post करते हैं, okay, how do we balance a ledger, and some rules related to ledger. अच्छा, if you guys remember, can you tell me, जो हम income statement बोलते हैं, what do we call it in ACCA? What do we call it in ACCA? और international terms में हम क्या बोलते हैं income statement को? Statement of financial position. वो तो बैलेंस शीट. Statement of financial position is balance sheet. It shows your position. It shows business का position. So statement of financial position is your balance sheet. Okay, it is also known as SOFP. अच्छा, दोनों में से मुझे बताओ बैलेंस. Statement of profit and loss होगा. हाँ, ये होगा statement of profit. प्रॉफिट और इसे हम बोलेंगे SOPL. Now can anybody of you tell me, जो हमने 5 elements of financial statement सीखे थे, उसमें से क्या क्या elements इधर आएंगे? What will be the elements that will be recorded here? And क्या क्या elements statement of finance profit or loss में आएंगे? So what are the elements that I will record in SOPL? And what are the elements that I record in the SOFP? अभिमन्यु ट्राई करना है आपको. This is statement of profit and loss. हाँ अभिमन्यु. SOPL में तो मैम income और expenses. परफेक्ट. Yeah. इनकम और एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें प्रॉफिट से मतलब है या हमें लॉस से मतलब है. सो ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन योर SOPL. SOFP में क्या आएगा? बाकी सब एसेट्स, लाइबिलिटीज. एसेट्स आ जाएंगे, आपके लाइबिलिटीज आ जाएंगे और कैपिटल आ जाएगा. ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी रूल्स जो ये एप्लीकेबल है उस रूल्स के लिए. ठीक है, SOPL में इनकम एंड एक्सपेंसेस, SOFP में एसेट्स एंड
liabilities and capital. Now let's go ahead. We're going to see the ledger account. ठीक है. Ledger. So what is a ledger in accounting? So it is a book or a digital record where all business transactions, they are grouped and summarized under separate accounts. They are grouped and summarized under separate accounts. A quick example. ठीक है. फर्स्ट जैन को बिजनेस मेरा स्टार्ट हो रहा है. बिजनेस स्टार्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सोल ट्रेडर. ठीक है. Business starts, so I bring in capital. I bring in capital of, let's say, 250,000. Then मैं वापस 1st Feb को I bring in capital. That is 100,000. Again, I think 30th May को I say, you know, I need more capital. Let's bring 20,000. फिर 4th September को I need 10,000. So you see there are so many journal entries जो आपको दिखेंगी. Debit cash capital, debit cash capital, debit cash capital. So you're going to see it 4 times in 1 year. So at the end of the year, if मुझे सिर्फ एक single amount चाहिए कि भाई capital कितना है business में, मैंने कितना invest किया है. So ledger account will help you because what will it do? It will group all of this. So ledger account में आपको दिखेगा 250 है, 100 है, 20 है and 10 है. So you'll get the exact total figure. Okay, 350, 370, 380. आप पूरा 380,000 जो है आपको लेजर अकाउंट में दिख जाएगा. So you don't have to see one journal entry and वो journal entry को calculate करना है. It is a very long process. For that, ledger account is best. So it will group all of your transactions of similar nature. Okay, and they're summarized under separate accounts. Now, why do we need a ledger? See, जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस डेट वाइज ये हमें पता है. एवरीडे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जर्नल में चले जाते हैं. नाउ द लेजर क्या करेगा? दिस ऑर्गेनाइजेस देम अकाउंट वाइज. मतलब जो भी कैश के है, जो भी जर्नल एंट्री में कैश आएगा वो सारे ट्रांजैक्शंस कैश अकाउंट में चले जाएंगे. इफ सारे सेल्स अकाउंट में चले जाएंगे. सारा जो भी आपने रेंट पे किया होगा, पर मंथ पे किया, तो 12 जो भी एंट्रीज है वो एक अकाउंट में चले जाएगी. सो लेजर ऑर्गेनाइजेस देम अकाउंट वाइज. So account wise. This makes it easier to prepare the trial balance. क्योंकि ledger के बाद क्या हमने देखा था? Trial balance. So how's the flow? We go from journal, then we go to ledger. Okay. From ledger हम जाएंगे trial balance. From trial balance we go to our financial statements. हमने सिर्फ 2 financial statements देखी है अब तक, जो है SOPL और SOFP. और भी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो टाइम आने पर हम सीखेंगे. ठीक है. सो बेसिक लेजर का इंट्रोडक्शन है. क्या होता है? लेट्स सी हाउ इज द लेजर फॉर्मेट. सो दिस इज हाउ अ लेजर अकाउंट इज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टी अकाउंट. टी अकाउंट क्यों? क्योंकि लेजर हमेशा ऐसा होता है. दिस इज हाउ यू विल सी अ लेजर अकाउंट. सो इट represents a T. T दिख रहा है आपको? ये टी अकाउंट भी बोलते हैं. So कोई भी journal ledger account, so you have to have a title for the ledger, right? I'll take a different color. So आपकी ledger को एक title होगा. So each type of asset, liability, I hope it's clear. थोड़ा zoom करो और. Each type of asset, liability, capital, income or expense will have its own individual account. मतलब आपको क्या क्या अकाउंट दिख सकते हैं? आपको कैश अकाउंट दिखेगा, आपको मशीनरी अकाउंट दिखेगा, आपको लैंड अकाउंट दिखेगा, आपको इन्वेंट्री अकाउंट दिखेगा. इन्वेंट्री मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स, गुड्स आपके नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होंगे. फिर आपको बैंक लोन अकाउंट दिखेगा, राइट? आपको रेंट दिखेगा, रेंट अकाउंट दिखेगा, आपको सैलरी अकाउंट दिखेगा. सो एवरी अकाउंट will be separate. The name of the individual ledger account will appear here at the top of the T account. So name will be here.
द लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेट्स गो लेफ्ट हैंड साइड पे हम चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, इट इज द डेबिट साइड। DR stands for debit. Debit entries are recorded on the left side of the T account. तो जब भी कोई आप अकाउंट डेबिट करोगे तो आप डेबिट में लिखोगे, ठीक है। देन द राइट हैंड साइड इज योर क्रेडिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। CR stands for credit. Credit entries are recorded on the right side of the T account. Then लेजर अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, तो इसमें 3 कॉलम्स होती है, डेट, नैरेटिव एंड द अमाउंट, ठीक है। सो डेट इट इज नथिंग बट द डेट ऑफ योर ट्रांजैक्शन। नैरेटिव ये छोड़ दो, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन है, नॉट नीडेड एग्जाम के लिए। नैरेटिव मतलब हम देखेंगे ये अमाउंट, इट इज द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेम वे क्रेडिट साइड पे भी डेट होगा, नैरेटिव होगा और अमाउंट होगा। सो एसेंशियली आपका अकाउंट कैसे दिखेगा, लेट्स अंडरस्टैंड बाय अ स्मॉल सैंपल कैसे दिखेगा आपका अकाउंट। सपोज मैं आपको एक सिंपल एंट्री बताती हूँ, डेबिट सैलरी, क्रेडिट कैश। कोई मुझे बता सकता है ये एंट्री क्या है, किस चीज की जर्नल एंट्री है? Debit salary, credit cash. What am I doing? What is this journal entry for? Yes, guys, quickly. एक बता दो, एक जन, कोई भी। Yes, guys. We can't hear you. ठीक है। It is nothing but you are paying salary. आपने सैलरी पे की है, ये उसकी जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो ये जर्नल में ऐसे लिखते हैं, हाउ विल यू राइट इट इन द टी अकाउंट, ये आपका टी अकाउंट होगा, ठीक है। कैश अकाउंट आप ऐसे लिखोगे, कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। सो कैश क्या हो रही है, कैश इज क्रेडिटिंग, वी आर क्रेडिटिंग कैश, मतलब कैश कम हो रही है आपकी। सो यू विल राइट इट ओवर हियर, आप इस साइड पे लिखोगे। सपोज द अमाउंट इज 10,000। हम ये सीखने वाले हैं, आई एम जस्ट गिविंग छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो कैश आपकी क्रेडिट हो रही है, आपकी क्यों, क्योंकि आप सैलरी पे कर रहे हो, द एसेट इज डिक्रीजिंग, सो वी आर क्रेडिटिंग कैश। एंड वाई डेबिट सैलरी, बिकॉज सैलरी इज एन एक्सपेंस। जब भी आप एक्सपेंस आपके इंक्रीज होते हैं तब आप उनको डेबिट करते हो, ये हमारे मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। फिर इफ ये क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। कोई मुझे बता सकता है मैं यहाँ पे क्या नरेशन में लिखूं, डेट छोड़ दो, नरेशन में क्या लिखूं यहाँ पे? फिर बाय सैलरी हो जाएगा। बाय सैलरी, हाँ। सीधा सैलरी भी लिख सकते हो, क्योंकि अगेन आपको एग्जाम में बनाना नहीं है लेजर, आपको सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस दिए गए होंगे जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट आएगा। सो सैलरी, सो वी आर क्रेडिटिंग कैश, सो कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं। सो दिस सैलरी इसीलिए होता है कि हमें समझ आए कि हम कैश बाहर क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि हमने सैलरी पे की है। सो इसलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलेगा कि 10,000 कैश अकाउंट क्रेडिट कैश के लिए, इट विल नॉट मेक सेंस। इसलिए हम सैलरी लिखेंगे, क्योंकि फिर हमें समझ आएगा कि वी हैव पेड सैलरी, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ओके हमें अभी अच्छे से देखते हैं। अभिमन्यु, अब तक आपको फॉर्मेट में कोई डाउट है? नो मैम। नहीं ना, इजी है। टी अकाउंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। अभी आप पोस्ट कैसे करते हो लेजर अकाउंट में, लेट्स अंडरस्टैंड आप पोस्ट कैसे करते हो। सो ये कुछ ना जर्नल एंट्रीज मैंने लिख ली है। तो पहली जर्नल एंट्री ऑब्वियसली आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कैपिटल बिजनेस में, उसकी है, सो यू आर डेबिटिंग कैश एंड यू आर क्रेडिटिंग कैपिटल। दूसरी जर्नल एंट्री क्या है, रेंट, डेबिट रेंट टू क्रेडिट कैश, मतलब यू आर पेइंग रेंट,
तो ये उसकी जर्नल एंट्री है। थर्ड है डेबिट सैलरी, जो हमने अभी देखा, हमने सैलरी पे कर रहे हैं, और क्रेडिट कैश। और फोर्थ वापस एक कैपिटल इंजेक्शन की एंट्री है ना। कोई मुझे बता सकता है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस, कि हम अकाउंट्स कैसे गिनते हैं, कि हम क्या क्या कौन से लेजर अकाउंट्स बनाए। तो let's see how do we recognize that. So number one account I see is cash. ये सबसे पहला अकाउंट बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कैश, कैश अकाउंट। दूसरा आई कैन सी इज कैपिटल, तरह से कैपिटल अकाउंट। तीसरा आ गया रेंट, ये एक न्यू अकाउंट मैंने बना दिया। डू आई हैव टू मेक अ कैश अकाउंट अगेन गाइज? क्या मैं ये फोर्थ अकाउंट वापस बना दूं, कि हम इसी में रिकॉर्ड करेंगे सारा? हम ग्रुप कर रहे हैं, राइट, हम समराइज कर रहे हैं। सो डू आई हैव टू मेक अनदर फोर्थ कैश अकाउंट, कि इसी में आई विल रिकॉर्ड दिस? यस अभिमन्यु, नो मैम, एक इसी बार में कर समराइज लो, करना। इसी में कर लो, ठीक है। फिर सैलरी का बनेगा, क्योंकि हमने अब तक बनाया नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी सैलरी, सैलरी अकाउंट। और वापस कैश एंड कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी। पहला हम डेबिट कर रहे हैं कैश। डेबिट करने का मतलब होता है हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एक एसेट है। तो वील गो टू द डेबिट साइड, ओके, वील गो टू द डेबिट साइड एंड वील से टू कैपिटल, या सिर्फ कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, टू कैपिटल, दैट इज 100,000। सो कैपिटल हमने डाला है बिजनेस में, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में कैश आ रही है। सो दैट इज वाई टू कैपिटल 100,000। सो लेट मी जस्ट राइट कैपिटल, बिकॉज आपको टू बाय देखने नहीं मिलेगा एग्जाम में भी। So you won't see to and by, guys. You will just see the name of the account and the amount. That is how we do in ACCA. In FA, you will see that. So I just want to make you guys comfortable कि वो सीधा कैपिटल आएगा और 100,000। क्या फर्स्ट पोस्टिंग समझ आ गई? फर्स्ट स्टेप समझ आ गया कैसे होता है? क्यों मैंने यहाँ पे हाँ, कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल में क्या करूं मैं? कोई गेस कर सकता है कैपिटल अकाउंट में मैं कैसे ये रिकॉर्ड करूं? हाँ, अब अभिमन्यु बोलो। कैपिटल में कैश कर लेंगे मैम। ये साइड पे, क्रेडिट साइड पे, यस या मैम, डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड में मैम। क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है? कैश की वजह से। सो कैश 100,000। तो देखा आपने, जो ड्यूअल एंट्री है वो हमेशा आपको दो इफेक्ट देगी, एक कैपिटल में गया है और एक कैश में गया। चलो नेक्स्ट, अभी ये तीनों आपने बताना है। चलो सेकंड वाला कोई भी, अभिमन्यु आप बता दो, चलो। क्रेडिट कैपिटल बड़ा मैम। सेकंड एंट्री बता दो, सेकंड वाली। डेबिट रेंट 2,000 और क्रेडिट कैश 2,000। मैं कैश अकाउंट में क्या लिखूं और मैं रेंट अकाउंट में क्या और किधर लिखूं, ये मुझे बता दो। ये रेंट, रेंट तो मैम के डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट जाएगा क्योंकि डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैश लिख दूं ना? यस मैम। यस। और कैश अकाउंट क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है 2,000 से। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने रेंट पे किया। सो रेंट, परफेक्ट। गर्ल, थर्ड वन, टेक इट अप। आप बता दो अभी, ये हमने अभी किया। फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला भी सेम है, रहने दो। तो सैलरी, क्रेडिट कैश, सैलरी की वजह से मनी बाहर जा रहा है 5,000, ओके, एंड सैलरी अकाउंट में आई विल डेबिट इट कैश 5,000। सेम है अकाउंट, ये वाली जर्नल एंट्री सेम है। अब वापस कैपिटल आ रहा है, इस बार 10,000 आ रहा है, ठीक है। पोस्टिंग समझ आ गई दोनों को, हम कैसे पोस्ट करते हैं लेजर में?
How do you post in ledger accounts? हाँ yes. अभी ना I'll give you an easy. What if आपको एग्जाम में उन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं दिए, आपको सीधा ट्रांजैक्शन बताया है और आपको लेजर अकाउंट दिखाया है, मतलब दे से ये कैश अकाउंट है, ठीक है, उन्होंने दिया है सैलरी 2000, कमीशन 1000, आपने उन्होंने आपको ऐसे दिया, तो आपको क्या जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? एब्सोल्युटली नॉट. देयर इज अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड कि लेजर अकाउंट्स में उन्होंने रिकॉर्ड कैसे किया. तो एक्सपेंस, एसेट और ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था DEAD, दिस स्टैंड्स फॉर डेबिट. सो एक्सपेंस, एसेट और ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. डेबिट बैलेंस मतलब जब भी ये इंक्रीज होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है, ड्राइंग्स इंक्रीज होता है, तो आप वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है. जब भी ये कम होता है, व्हेन इट डिक्रीजेस, आप ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे. सेम वे फॉर, मतलब एक एग्जांपल ले लूं तो लेट्स टेक आई परचेज मशीनरी. I purchased machinery that is worth $150,000. ठीक है, इस रूल से चालू में मैंने जैसे बताया, डेबिट, आप एक्सपेंस एसेट ड्राइंग्स को डेबिट कब करोगे? जब आपका वैल्यू उनका इंक्रीज हो रहा है. क्रेडिट जब वो गिर रहा है. तो क्या मैं विदाउट जर्नल एंट्री कैन आई पोस्ट इट इन द मशीनरी अकाउंट? सपोज लेट्स कंसिडर दिस टू बी मशीनरी अकाउंट. विदाउट जर्नल एंट्री क्या मैं पोस्ट कर सकती हूँ, या मुझे जर्नल एंट्री पहले लिखनी पड़ेगी, देन आई कैन पोस्ट इट? कैन आई जस्ट राइट कैश 150,000? कैन आई जस्ट राइट दिस? क्या मुझे समझ आ जाएगा कि मैंने मशीनरी परचेज की है इसलिए वो डेबिट हो रही है, और क्यों मैंने कैश से परचेज की है वो 150,000 की मशीनरी? क्या ये बात समझ आई आपको कि विदाउट जर्नल एंट्री कैसे आप पोस्ट कर सकते हो? यस मैम. हाँ, और एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं. तो हमेशा याद रखना, डेड मतलब डेबिट, एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स, तो इन तीनों का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है जब ये इंक्रीज होता है. हम ना इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये कैश अकाउंट है. This is the debit side. This is the credit side. Cash is an asset. मतलब डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज. चलो, विदाउट जर्नल एंट्री, बिना सोचे मुझे बताओ मैं पोस्टिंग कैसे करूं? परचेस्ड फैक्ट्री. यस गाइस, फॉर कैश ही. हाँ, परचेज फैक्ट्री फॉर कैश. तो बाय फैक्ट्री हो जाएगा. कैश डिक्रीज हो रहा है, मैं फैक्ट्री लिख हाँ. देती हूँ. फैक्ट्री 900,000. पेड रेंट नीचे एक्सपेंस. फिर वही बाय रेंट हो जाएगा. रेंट फिर एक्सपेंस. टू कमीशन और
यहाँ पे लिख दो रिसीव्ड कमीशन, मतलब आया है कैश अंदर बिजनेस में, इंक्रीज हुआ है, सो हाँ, कमीशन और टू कैपिटल है, नहीं, और हाँ हाँ, टू कैपिटल हो जाएगा, और टू कैपिटल। कैप, यस। समझ आया विदाउट जर्नल एंट्रीज कैसे लेजर पोस्टिंग होती है? तो ये सेम लॉजिक एक्सपेंस के लिए यूज करना है, एसेट के लिए यूज करना है, और ड्रॉइंग्स के लिए यूज करना है, क्योंकि डेबिट जब वो इंक्रीज होता है, क्रेडिट जब वो डिक्रीज होता है। अभिमन्यु, क्या आपको समझ आया ये लॉजिक कि हम सीधा कैसे लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं? यस मैम। नहीं आया तो बोलो, हाँ, आई कैन शो अगेन, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ओके, अभी चलते हैं लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल पे। इसका होता है क्लिक, क्लिक हम इसको क्लिक बोलेंगे, मतलब लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। व्हाट डू आई मीन मैंने से उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब जब वो बढ़ते हैं तब वो क्रेडिट होते हैं, और जब वो कम होते हैं तब वो डेबिट होते हैं। ठीक है, सो क्रेडिट बैलेंस, they always have a credit balance, liabilities, income and capital. So you can remember it as dead click. Dead click याद रखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कैसे करना है। इसका भी एग्जाम्पल लू, लाइबिलिटी इनकम का भी एग्जाम्पल ले लू एक। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, पहले मुझे बताओ अकाउंट्स कितने बनेंगे यहाँ पे और कौन से बनेंगे? यस अभिमन्यु, आप बता दो कौन से अकाउंट्स मुझे लेजर अकाउंट्स बनाने चाहिए। लाइबिलिटी का मैम एक तो इफ हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज मैम। क्रेडिट परचेज, और हम एंट्री क्या पास करते हैं, क्या हम ऐसा बोलते हैं डेबिट परचेजेस, और हम क्रेडिट क्या करते हैं पेबल्स? पेबल्स हो जाएगा ना। हाँ, पेबल्स या तो ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो हमें एक परचेजेस का बनाना है, हमें एक ट्रेड पेबल्स का बनाना है। रिसीव्ड रेंटल इनकम, इसमें क्या क्या, इसमें कौन से बनाने चाहिए मुझे? एक रेंटल इनकम का बना लूं? इफ आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप फटाक से जर्नल एंट्री सोच सकते हो। तो डेबिट कैश हो जाएगा, कैश अंदर आ रही है, और क्रेडिट रेंटल इनकम, इनकम है। मुझे एक तीसरा कैश का बनाना पड़ेगा, फोर्थ आई हैव टू मेक फॉर रेंटल इनकम, राइट। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कैश ऑलरेडी है, मुझे कैपिटल का एक बनाना पड़ेगा, फिफ्थ अकाउंट। पेड बैंक लोन, कैश का ऑलरेडी है, बैंक लोन विल बी माय सिक्स्थ अकाउंट। क्या ये समझ आया है?
हाउ टू अंडरस्टैंड कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। यस अभिमन्यु, फास्ट जा रही हूँ मैं बहुत, आपको समझ नहीं आ रहा, आप बता दो मुझे। आ रहा है मैम समझ। आया समझ? ठीक है, तो हम सब अकाउंट नहीं बनाते। आप ना मुझे सिर्फ रेंटल इनकम का बता दो, बैंक लोन का बता दो। दिस इज योर रेंटल इनकम अकाउंट। योर क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड। यस अभिमन्यु, रिसीव्ड रेंटल इनकम $15,000। डेबिट में लिखूं, क्रेडिट में लिखूं, क्या लिखूं, आप मुझे बताओ सारा। रेंटल इनकम मैम डेबिट साइड ही आएगी मैम, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है मैम। इनकम है ना, बट लायबिलिटी कैसे हुई? बिजनेस के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्होंने वो रेंट पे चढ़ा है और उनको रेंट मिल रहा है। लायबिलिटी की तो तो बात ही फिर नहीं है, इनकम है। यस मैम, तो फिर क्रेडिट होगा मैम। क्रेडिट हो जाएगा, तो आप लिखोगे कैश, क्योंकि कैश आ रही है आपके पास। कितने की आ रही है? 15। समझ आया अभी? ये इनकम क्या होता है, हमने वो डेड क्लिक में से ये क्लिक है। जब बढ़ता है तब क्रेडिट करेंगे, कम होता है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, सेम वेज मुझे बैंक लोन बता दो। बैंक लोन अकाउंट बना रही हूँ मैं, सोचो तब तक कैसे करोगे। ये डेबिट है और ये क्रेडिट। बैंक बैंक लोन लोन में क्या क्या होती है? मैम? क्या यही रूल यूज करेंगे हम? यस मैम, की लाइबिलिटी होती है, तो अब बता दो। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है मैम, पे कर रहे डिक्रीज हैं हो मैम। रही है, परफेक्ट। आपको कैश पे करना पड़ेगा डिक्रीज करने के लिए, ये लाइबिलिटी आपने पे किया है क्योंकि 90। समझ आया? कैसे करना है? यस ठीक, तो ये ध्यान से अच्छे से एक बार वापस देख लेना, मैं गिव यू द पीडीएफ। चलो क्वेश्चन पे आते, लेट्स बिगिन क्वेश्चंस। अच्छा, पहले तो मुझे क्विकली ये बताओ, ये ट्रांजैक्शन दिया गया है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? कोई भी ले सकता है, जल्दी जल्दी बता दो। ये हमने बहुत किया है अभी। चलो 4 4 बता दो। गर्व यू स्टार्ट एंड देन अभिमन्यु आप बताओगे। यस गर्व। परचेज फॉर कैश, मतलब इसमें साइड चूज करना है, डालना साइड में। पहले आप डेबिट क्रेडिट बता दो, फिर हम पोस्टिंग करेंगे, कि तो सीधा मतलब पोस्टिंग। ये कैश अकाउंट के हिसाब से है क्या? हाँ मतलब मतलब मुझे परचेजेस किस, का कैश, तो डेबिट परचेज होगा, हाँ, क्रेडिट कैश होगा, ऐसे ऐसे बता दो। अच्छा वैसे हाँ, वही डेबिट परचेसेस और क्रेडिट पेबल्स सेकंड वाला। ये सेम है, ये पेबल्स हो जाएगा। हाँ, इसमें कैश, डेबिट कैश हो जाएगा और फिर सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू जो भी इसमें होता है। रिसीवेबल्स और सेल्स हो जाएगा। इसमें रिसीवेबल, क्योंकि आपको मिलेंगे पैसे, रिसीवेबल है, एसेट है। हाँ, और फिर सेल्स। और यस, ये सेम है। अभिमन्यु आप बताओगे। ऑब्टेन अ बैंक लोन, आपको बैंक लोन मिला है। तो मैम बैंक लोन डेबिट हो जाएगा मैम। बैंक लोन डेबिट होगा, आपको लाइबिलिटी बढ़ रही है ना आपकी। लाइबिलिटी तो मैम वो फिर तो डेबिट होगा मैम, बैंक लोन और क्रेडिट में कैपिटल हो जाएगी मैम। कैसे क्या? आपको बैंक लोन मिल रही है, ठीक है, आपको बैंक यस लोन मिल रही है मतलब आपको अभी कैश मिल रहा है, बाद में आपको बैंक लोन पे करना है, तो बैंक लोन लाइबिलिटी हो जाएगी।
लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट? क्रेडिट मैम। क्या करते हैं? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं मैम। परफेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक लोन। और आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया। बैंक पेमेंट फॉर वेजेस। ये भी मैम बैंक से लोन लेकर ही पेमेंट किया गया मैम वेजेस की। नहीं नहीं, बैंक पेमेंट फॉर वेजेस मतलब वेजेस, उन्होंने वेजेस एक्सपेंस है, पहले ये समझ लो। वेजेस एक्सपेंस है, आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं तो आप डेबिट करते हो, राइट? यस मैम, तो डेबिट हो जाएगा मैम हाँ, ये वेजेस। और क्रेडिट होगा बैंक, मतलब आप बैंक से पैसे भर रहे हो, सिंपल। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, पहले तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब ये इनकम है आपकी। यस मैम। इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट? इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है मैम। परफेक्ट, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट लिख दो या इंटरेस्ट लिख दो, जो भी हो। और ये आपके बैंक में ही आएगी क्योंकि बैंक लिखा है उन्होंने। बैंक रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, बैंक रिसीट मतलब बैंक में आपको पैसे आए। किससे पैसे आए आपको? क्रेडिट कस्टमर से, रिसीवेबल से पैसे आए आपको। तो आप डेबिट क्या करोगे? डेबिट। बैंक करोगे, बैंक में पैसा है आपको, राइट? आपका बैंक, आपका एसेट बढ़ रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और आपको किससे पैसे आए, क्रेडिट रिसीवेबल कस्टमर से से। हम जाएगा। क्रेडिट कस्टमर को क्या बोलते हैं? हम क्रेडिट कस्टमर को रिसीवेबल बोलते हैं। उनसे हमको यस। रिसीवेबल मिलेगा तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, हम क्रेडिट रिसीवेबल करेंगे। क्योंकि जो हमें आना था ना, पैसे आने थे वो आ गए, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ये वाली एंट्री समझ आई आपको? यस मैम। मतलब पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि आप डेबिट रिसीवेबल, हमने डेबिट रिसीवेबल किया और हमने क्रेडिट सेल्स किया। मतलब हमारे सेल्स तो हो गए $100 की, बट उसने पे नहीं किया मुझे, इसलिए मैंने रिसीवेबल डाल दिया था कि मतलब मैं रिसीव करूंगी फ्यूचर में। अभी उसने मुझे पे कर दिया तो मेरे पास आ गया पैसा, मेरे पास आ गया, बैंक आ गया। और क्या मैं ये डेबिट को क्रेडिट कर दूं? क्योंकि मुझे मिल गया अभी, तो मेरे पास ये एसेट बचा ही नहीं ना, अभी उसने दे दिया तो। ये समझ आया लॉजिक डेबिट का, यस। कि हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट क्यों किया है रिसीवेबल को? क्योंकि ये टाइम पे जब सेल हुआ था तभी उसने, कस्टमर ने बोला मैं आपको 2 महीने बाद पे कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने एक रिसीवेबल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स में मैंने रिसीवेबल एक नोट कर लिया था, ये मुझे 2 महीने बाद आ जाएगा। अभी 2 महीने बाद उसने मुझे बैंक में मेरे $100 डाल दिए हैं, तो क्या मैं ये रिसीवेबल हटा दूं बुक्स में से? अभी मुझे जरूरत नहीं है इसकी, राइट? तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगी क्योंकि मेरा एसेट अभी डिक्रीज हो गया। ये एसेट होता है, रिसीवेबल एसेट होता है। तो ये एसेट बढ़ा था इसलिए मैंने डेबिट किया था। अब ये एसेट कम हो गया, उसने मुझे दे दिए पैसे, तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। क्या ये क्लियर है अभिमन्यु, गर्ग, बोथ यस ऑफ यू? मैम। तो ये लॉजिक याद रखें। हाँ। I'll just know, I'll make a note of it somewhere. ये पूरा ही आ रहा है, लेट इट बी, रहने देते हैं। ठीक है, बैंक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। अभी अभिमन्यु, जैसे मैंने आपको ये वाला समझाया, अभी आप ये समझो। जब भी हमने सप्लायर की बात कर रहे हैं, मतलब हमने इनसे कुछ खरीदा था, राइट? तो हमने यहाँ पे देखा परचेजेस ऑन क्रेडिट, तभी क्या था, हमने किया था डेबिट, हमने किया था डेबिट परचेजेस, हमने किया था डेबिट परचेजेस और क्रेडिट पेएबल्स। मतलब हमारे पास गुड्स तो आ गए, हमने गुड्स तो खरीद लिए, बट हमने अब तक पे नहीं किया था सप्लायर को। अभी जब हम पे कर रहे हैं सप्लायर को तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई, अग्रीड?
Yes, ma'am. अग्रीड, ये मेरी लाइबिलिटी हो गई थी, अभी मैंने दे दिए, मैंने पैसे दे दिए, तो मेरे क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा या बैंक हो जाएगा। सबसे पहली बात, पैसे देने के बाद क्या मैं इसको डेबिट कर लूं, क्योंकि अभी मेरे पास ये लाइबिलिटी बची नहीं है, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, मैंने दे दिए पैसे, तो मैं इसको डेबिट कर लूंगी। यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई थी, यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। समझ आया आपको? Yes, ma'am. So I will debit payables and I will credit bank. ठीक है, अभी what I want you guys to do is, we've seen कि हमने डेबिट क्या करना है, हमने क्रेडिट क्या करना है। मुझे चाहिए आप लोग टी अकाउंट्स बनाओ। तो ऐसे आप अकाउंट्स बनाओगे, जैसे आप परचेजेस बनाओगे, सबसे पहला तो कैश बना लो, सबसे बड़ा अकाउंट होता है वो। फिर आप परचेजेस बनाओ, ठीक है, देन यू मेक अ पेएबल्स अकाउंट, पेएबल्स अकाउंट बनाओ, डेबिट क्रेडिट। देन आप सेल्स अकाउंट बनाओ, फिर और कौन सा अकाउंट बनेगा, रिसीवेबल अकाउंट बन जाएगा एक। क्रेडिट डेबिट, फिर और सेल्स रिसीवेबल बैंक लोन अकाउंट बन जाएगा एक। और एक बनेगा वेजेस अकाउंट, एक बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, और एक बैंक अकाउंट बन जाएगा। एंड देन आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है आपको पोस्ट करना है। आप कर पाओगे कि आप, will you be able to do it or should I do it now? Yes guys, girls, would you be able to do it or should I do it now? रिपीट द क्वेश्चन, ये मैंने कॉलेज बोला, में भी हल्ला बहुत हो रहा है। हाँ ओके, आई रिपीटेड, मैंने बोला क्या आप पोस्ट कर लोगे ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में, या मैं अभी करूँ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा, अभिमन्यु हो जाएगा, ट्राई हाँ करोगे? हाँ। Yes, ma'am. कल हम करेंगे ये, मैं आई विल डू इट विथ यू गाइस, तो कल फास्ट हो जाएगा। इफ आप ये ट्राई करोगे ना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। तो ये देखो, ये उसका सोल्यूशन है, लेजर अकाउंट नहीं है, ये जो हमने किया था वो है। उन्होंने सिर्फ कैश एट बैंक लिखा है, हमने कैश लिखा है और यहाँ पे हमने बैंक लिया है, सेम ही चीज है, बट ये देख ले, हमने भी ऐसे ही सॉल्व किया। बस आपको ये लेजर पोस्टिंग अभी आपने खुद करनी है। अभी क्या लेजर को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? सपोज ये मेरा कैश अकाउंट, ठीक है, पूरे साल मैं अमाउंट लिखते गई, ठीक है, आई राइट अमाउंट्स, डेबिट साइड पे मैंने अमाउंट्स लिखे, क्रेडिट साइड पे मैंने अमाउंट्स लिखे, ठीक है। क्या ये साइड की जो अमाउंट है, डेबिट साइड की अमाउंट क्या क्रेडिट साइड से इक्वल होगी अमाउंट, कि नहीं होगी? यस गाइस, यहाँ पे देख लो, क्या ये हमने 90,000 यहाँ पे लिखा है, तो इसका टोटल 90,000 है। क्या क्रेडिट साइड पे भी 90,000 है, यहाँ पे जीरो है, जीरो है, राइट? तो डेबिट साइड की जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड से टोटल अप नहीं होगी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे डेबिट विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कि हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अभी वो कैसे, क्या होता है, लेट्स चेक। बैलेंसिंग ऑफ लेजर, अब ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, मेरे साथ पढ़ो और नोट्स भी लो। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द लेजर अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑफ, तो आपको जो भी आपने लेजर अकाउंट बनाया है आपको वो बंद करने हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यू बिफोर क्लोजिंग द लेजर, आप
क्लोज करने से पहले आपको लेजर अकाउंट्स बैलेंस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जो डेबिट साइड होगी, जो डेबिट साइड पे होगी, क्रेडिट साइड पे इक्वल नहीं। आपको लेजर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। Balancing of ledger accounts is applied systematically to every account. तो बैलेंसिंग आपको एवरी अकाउंट की करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा, करना पड़ेगा आपको पेबल्स, आपको हर अकाउंट बैलेंस करना। नेट इशू था कुछ तो। Let me share my screen. क्लीन स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है? हाँ ठीक। तो कहाँ तक आप लोगों ने सुना? ओके, लेट्स स्टार्ट वही फ्रॉम। बैलेंस। हाँ, तो बिफोर क्लोजिंग ऑफ आपको बैलेंस करना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू इट फॉर एवरी अकाउंट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स। आप बैलेंस कैसे करोगे, हाउ टू बिगिन, ठीक है? तो पहले तो आपको यू हैव टू सम मतलब जो भी सारे वैल्यूज है डेबिट साइड पे उनका आपको टोटल करना है। सो यू नीड टू सम द डेबिट साइड एंड नोट द टोटल। मतलब डेबिट साइड कैलकुलेट करो और वहां पे लिख लो नीचे कितना है, टोटल वैल्यू क्या है। ओके, देन यू नीड टू सम द क्रेडिट साइड and you need to note the total. The larger total will be the total on both sides. If suppose ये आपका T account है, this is your T account. Okay, let's take it as cash account. आपके डेबिट साइड पे टोटल आया 100,000, आपके क्रेडिट साइड पे टोटल आया 80,000। आप कौन सा टोटल चूज करोगे दोनों साइड्स के लिए? आप कौन सा टोटल चूज करोगे दोनों साइड्स के लिए? जो बड़ा हो। जो बड़ा होगा। तो मैं 80,000 ही, आई राइट 100,000 होगी। यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 100,000। यू नीड टू इंसर्ट अ बैलेंसिंग फिगर। आपको एक बैलेंसिंग फिगर डालना होगा ऑन द साइड विच इज स्मॉल सो दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। क्या मैं यहाँ पे, ये छोटी साइड है तो मुझे, क्या मैं यहाँ पे 20,000 डाल दूं, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, टू मेक इट 100,000, तो वो जाके इक्वल हो रहा है। क्या ये 4 स्टेप समझ आए आपको कैसे करना है? डेबिट साइड का टोटल करो, लिख लो। क्रेडिट साइड का टोटल करो, लिख लो। चूज कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है इसमें, तो डेबिट साइड की अमाउंट भी क्रेडिट साइड पे सेम होगी। क्रेडिट साइड था कितने का, एक्चुअली 80,000 का था, तो मुझे 20,000 और ऐड करने पड़े यहाँ पे, जिसे मैं बैलेंसिंग फिगर होता है वो बैलेंसिंग फिगर, वो ऐड करना पड़ा टू मेक इट 100,000। क्या ये 4 स्टेप समझ आए कि हमें बैलेंसिंग कैसे करनी है? अभिमन्यु, यस मैम। ठीक है, हमें ऐसा कर। तो ये इफ, जैसे ये हमने अकाउंट देखा, इसकी डेबिट साइड बड़ी थी, द डेबिट साइड, ये इसका मतलब होता है एक्सीड्स, ठीक है। द डेबिट साइड एक्सीड्स क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ा हुआ, तो वी कॉल दिस बैलेंसिंग फिगर एज अ डेबिट बैलेंस। ओके, इफ द डेबिट साइड इज exceeds the credit side, we call it a debit balance, क्योंकि डेबिट की वजह से आपको बैलेंस करना पड़ा, आपका डेबिट बड़ा था इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ा।
So we call it a debit balance. You will see this term. Okay, in many of the questions, this term may come. कि this account has a debit balance, this account has a credit balance. तो आपको पता होना चाहिए मेरा डेबिट साइड बड़ा था इसलिए क्रेडिट पे मुझे बैलेंस लगाना पड़ा, इसलिए दैट्स अ डेबिट बैलेंस. सेम वेज, ठीक है. इफ आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है, मैं ऐसे लिख लूं क्या कंफ्यूजन नहीं होगा. Okay, if your credit side is bigger than your debit side, so if your credit side exceeds debit side, इसके वजह से आपको डेबिट में बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा. सो यू कॉल इट अ क्रेडिट बैलेंस. अभी मुझे इसका बताओ, दिस बैलेंसिंग फिगर ऑफ 20,000, इज इट अ डेबिट बैलेंस और इज इट अ क्रेडिट बैलेंस? Debit balance. इट इज अ डेबिट बैलेंस. ठीक है, ये बेसिक्स है टू बैलेंस दी अकाउंट. नेक्स्ट, ये फिफ्थ स्टेप है आपका. नाउ द बैलेंस नीडेड टू क्लोज ऑफ द लेजर इज कॉल्ड द क्लोजिंग बैलेंस. जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला ना, उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंस कैरिड डाउन. बैलेंस C/D कैरिड डाउन. आई वुड प्रिफर आप ये टर्म यूज करो, आप क्लोजिंग बैलेंस यूज करो. यूज द टर्म क्लोजिंग बैलेंस rather than balance carried down. ठीक है. इन द नेक्स्ट, ये बात समझ आई, मतलब ये जो है दिस बैलेंसिंग फिगर ऑफ 20,000 इज योर क्लोजिंग बैलेंस. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है क्योंकि आप क्लोज करने के लिए आपने बैलेंसिंग फिगर लगाया है. इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, अभी आपने बंद कर दिया, ठीक है, आपने ये कैश अकाउंट को जो है वो आपने बंद कर दिया. आप 31 दिसंबर पे खड़े हो, आपने ये बंद कर दिया. अभी नेक्स्ट ईयर आपको खोलना भी तो पड़ेगा. यू नीड टू ओपन द अकाउंट. तो ये जो आपने क्लोजिंग बैलेंस लिया था 20,000 का, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर द क्लोजिंग बैलेंस इज कैरीड डाउन डायगनली. डायगनली मतलब टेढ़ा टेढ़ा नीचे आएगा. कैसे, क्या, लेट्स सी. ये आपका कैश अकाउंट था, यहाँ पे 100,000 थे. ठीक है, यहाँ पे 80,000 थे. 100,000, 100,000 क्रेडिट डेबिट. आपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिया, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 20,000. अभी आपका ईयर खत्म हो गया. दिस वॉज फॉर ईयर 2025. अभी आपका ईयर आ गया है. सो नाउ ईयर इज 2026. ठीक है, तो ईयर इज 2026. वो क्या बोल रहे हैं, आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो आपको टेढ़ा नीचे लाना है, आपको वो यहाँ पे लाना है और ये बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस 20,000. क्या ये चीज समझ आई है? क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये समझ आया है? अगर मैम ये क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड का होता तो वो इधर आ जाता टेढ़ा ओके. डायगनली. क्रेडिट पे है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे आ जाएगा. क्योंकि देखा जाए, इफ यू सी कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि इफ वो इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है. सो ओपनिंग बैलेंस वो यही आया है, डेबिट में ही आया है वो. गर्व, इज इट क्लियर? So this balance that opens the ledger account for the next accounting period is called the opening balance. Balance brought down, balance brought forward, ये इंडिया में बहुत यूज करते हैं हम टर्म्स. ACC में भी यूज करते हैं, बट क्लोज ओपनिंग बैलेंस इज इजी टू रिमेम्बर. ये हमारा ओपनिंग बैलेंस. इफ, जैसे अभिमन्यु ने पूछा, इफ क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे होता
ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। सो ऑन द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाए। ये लाइबिलिटी में होगा क्योंकि आपके लाइबिलिटी, इनकम, ये सारे क्रेडिट हैवी होते हैं, क्रेडिट साइड में उनका ज्यादा वजन होता है। तो डेबिट साइड में आप क्लोजिंग बैलेंस डालोगे, नेक्स्ट ईयर आप ओपनिंग बैलेंस से ओपन करोगे। अभी एक हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये सारा क्लियर है? इस बैलेंसिंग ऑफ लेजर स्टेप्स कंसेप्ट, क्या ये समझ आया दोनों को? मुझे कॉन्फिडेंट यस चाहिए। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, चलो सिंपल सा है। जो भी अब तक आपने 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स जो भी सीखे हैं, अप्लाई करो और मुझे बता दो क्या किधर क्या आना चाहिए। ऑल अप टू यू, लेट मी नो। आई जस्ट राइट डेबिट एंड क्रेडिट हियर। ऑल अप टू यू। अभिमन्यु आप ट्राई करोगे? बैलेंस के बारे में बताना है क्या मैम इसमें? हाँ, मतलब जो भी हमने 5 6 स्टेप्स देखे ना टू क्लोज ऑफ एन अकाउंट, वो यूज करो आप। मुझे आप अकाउंट क्लोज करो, मुझे आप क्लोजिंग बैलेंस बताओ, ओपनिंग बैलेंस बताओ, सब बताओ। पहला स्टेप क्या था अभिमन्यु? आपको क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल। यस फर्स्ट मैम। स्टेप इज डेबिट साइड टोटल। कितना है डेबिट साइड का टोटल? 10,250। 10,250। क्रेडिट साइड का टोटल? 425 मैम। 425। तो हमारा सेकेंड स्टेप इज क्रेडिट साइड टोटल। अभी मुझे क्या टोटल रखना चाहिए अभिमन्यु? क्या मुझे 10,250 रखना चाहिए या 425 रखना चाहिए? 10,250 मैम। तो क्या मैं ये निकाल दूं? मैं 10,250 लिखती, बट ये था कितना? 425। हम्म, तो बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस किधर आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड आना चाहिए? क्रेडिट साइड मैम। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मैं इसको अलग इसमें लिख लेती हूँ, टिक रेड। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए? 10,250 माइनस 420। क्या आएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस? 9,825। 9,825। परफेक्ट। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा मेरा? डेबिट साइड मैम। डेबिट साइड यहाँ पे चला जाएगा। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, 9,820। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से? यस मैम। नाउ हम एक ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। 5:20 हुआ है, 5:35 तक आ जाओ, ठीक है? 15 मिनट ब्रेक।
Abhimanyu, are you there? Yes, ma'am. चलो let's review. ठीक है, तो हमने ये देख लिया बैलेंसिंग कैसे करना है. दिस इज वन मोर क्वेश्चन जो आप खुद कर सकते हो. ठीक है, अभी स्पेशल रूल्स फॉर बैलेंसिंग. तो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि दो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे. एक एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका मतलब होता है बैलेंस शीट, जिसमें क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं. ओके, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं और कैपिटल होते हैं. तो एसओएफपी में जो जाते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, इसके लिए थोड़े डिफरेंट रूल्स होते हैं. और जो एसओपीएल में जाते हैं उसके लिए थोड़े डिफरेंट रूल्स होते हैं. तो लेट्स सी क्या है रूल्स. Now the closing balances for this year will become opening balance for next year. तो जो एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे ये ईयर के लिए, ये दे विल बिकम ओपनिंग बैलेंसेस फॉर नेक्स्ट ईयर, जो अभी हमने देखा. राइट, हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, उसमें भी यही था. जो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन गया. सो रूल क्या है, इफ आप एसेट लेजर अकाउंट क्लोज कर रहे हो, आप लाइबिलिटीज क्लोज ऑफ कर रहे हो और आप कैपिटल कर रहे हो, तब जो क्लोजिंग बैलेंस ये साल का है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस में जाए. दीज क्लोजिंग बैलेंसेस विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर द एसओएफपी. इसका क्या मतलब, अभी हम देखते हैं. हमने देखा कैश अकाउंट, $100,000, $80,000 क्रेडिट डेबिट. राइट, ये 100,000 था, ये भी 100,000 था. यहाँ पे हमने लिया क्लोजिंग बैलेंस, वो है 20. इसका मतलब है ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है 20,000, ये हम यूज करते हैं इन आवर एसओएफपी. मतलब जो कैश का बैलेंस दिखाते हैं, कैश बैलेंस इन योर बैलेंस शीट होगा 20,000. इन बैलेंस शीट वुड बी 20,000. क्यों? क्योंकि 100,000 का डेबिट हुआ है, 100,000 का इंक्रीज हुआ है, और क्रेडिट कितना हुआ, 80,000 का, उतना डिक्रीज हो गया है. तो नेट कैश कितना है, बचता कितना है हाथ में, दैट इज 20,000 कैश. ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अमाउंट जो होती है वो आपके बैलेंस शीट में आएगी. मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ अपार्ट फ्रॉम कैश. लेट्स टेक एन एग्जांपल. परचेस्ड मशीन, ठीक है, फॉर $600,000 की हमने मशीन परचेज की. सोल्ड मशीन, तो ये हमने परचेज मशीन, ये अलग मशीन है. जो हम ये सेल कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट मशीन. बहुत सारे मशीन होते हैं बिजनेस के पास, तो हमने एक मशीन बेची फॉर 180,000. हमारे मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा, हमारे मशीनरी जहाँ पे हम सारे मशीन अपने रिकॉर्ड करते हैं, देखो ये आ गया आपका डेबिट, ये आ गया क्रेडिट. ठीक है, मशीनरी एक एसेट होती है बिजनेस के लिए. तो जब मैं परचेज करती हूँ तो अभी मन डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट या क्रेडिट, मशीनरी परचेज करेंगे तो मैम डेबिट होगा. डेबिट होगा. तो मैं लिख लूँ कैश अकाउंट 600,000. 600,000 की मशीनरी मैंने लाई. मैं एक मशीन जो हमारे पास ऑलरेडी थी, सोल्ड मशीन फॉर 180,000, तो मशीनरी कम हो गई, तो ये क्या होगा, क्रेडिट. राइट, मैं बेचूंगी तो मुझे कैश मिलेगा 180,000 का. क्या हम इसको क्विकली बैलेंस कर सकते हैं. हमारा डेबिट साइड है 600,000 और हमारा क्रेडिट हमें दिख रहा है 180,000 है. तो हमारा बैलेंस क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 420.
420, ये आ गया 600,000। अभी लॉजिकली सोचा जाए तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास सिर्फ 420,000 की मशीनरी बची है? तो हमें यही हमारे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, हमें एसओएफपी में दिखाना चाहिए, और हमें 600,000 नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो गलत हो जाएगा। 600,000 की हमने परचेज की थी, 180 की हमने बेच दी, तो हमारे पास एक्चुअली बची तो इतनी ही है ना, करेक्ट? Yes, ma'am. तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास सिर्फ 4,20,000 की मशीनरी है, और ये मशीनरी की अमाउंट जो है, ये अमाउंट जाएगी हमारे एसओएफपी या तो हमारे बैलेंस शीट में, क्योंकि इतने की हमारे पास बची है मशीनरी। और ये 600,000 नहीं जाएगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक टोटल है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 2025 का है, ठीक है। 2026 में जब मैं मशीनरी अकाउंट ओपन करूंगी, मेरा मशीनरी अकाउंट है, ओपन करूंगी, तब यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट। मेरे पास नेक्स्ट ईयर जब मैं ओपन करूंगी तभी मेरे पास 4,20,000 की मशीनरी है। फिर जो भी मैं साल में परचेज करूंगी, जो भी मैं सेल करूंगी, वो रिकॉर्ड होते जाएगा। समझा आपको कैसे हो रहा है ये? Yes, ma'am. हाँ, तो एसेट्स, लाइबिलिटीज, देखो, एसेट्स पहला, दूसरा लाइबिलिटीज, और तीसरा कैपिटल। ये 3 अकाउंट्स, ये सारे जो अकाउंट्स है, कैश हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, ये सारे एसेट्स हो गए आपके। लाइबिलिटीज जैसे बैंक लोन, पेबल्स, ठीक है, ये लाइबिलिटीज हो गए। कैपिटल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स के सारे लेजर अकाउंट्स ऐसे क्लोज होते हैं, जो हमने ट्रेडिशनल सीखा था कि हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, फिर वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो assets, liability और capital balances at the end of the period are equal to assets, liability और capital balances at the start of the next period. ठीक है, ये एक रूल है फॉर आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल के लेजर अकाउंट्स हम ऐसे बंद करेंगे। अभी हम देखते हैं, हम और एक करते हैं, चलो हम एक बैंक लोन भी करते हैं, जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। $1 million का हमने बैंक लोन लिया, ठीक है। पेड बैंक लोन और 200,000, हमने साल में 200,000 का वापस चुका दिया। हम बैंक लोन अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड। बैंक लोन होती है, एक लाइबिलिटी होती है, तो जब भी बैंक लोन इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो टुक अ बैंक लोन ऑफ 1 million, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कैश 1 million, इंक्रीज हो रहा है। पेड बैंक लोन किधर आएगा अभिमन्यु? Debit side, ma'am. डेबिट, मैंने 200 का पे कर दिया। फिर हम टोटल अप कर लेंगे तो 1 million आ जाएगा, लार्जर जो टोटल होता है हम वो लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? Credit side, ma'am. डेबिट साइड। Yes, ma'am. वैसे debit side होएगा, ma'am. हाँ, क्योंकि हमारा क्रेडिट बढ़ा है, ये आ जाएगा 800,000। अभी आपको नहीं लगता कि एक्चुअली बैंक लोन तो हमारे पास सिर्फ 800,000 का ही बचा है, हमने 200,000 तो दे दिया, राइट? ये करेक्ट वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल गो इन बैलेंस शीट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लाइबिलिटी 800,000 की बची है, हमने इसमें से 200,000 तो दे दिया वापस बैंक को। अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सपोज ये है ईयर 2025, 2026 में हम जब अपने बुक्स वापस ओपन करेंगे, हम लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट
ये आ गया अपना डेबिट, ये क्रेडिट, तो ये डायगोनली इधर आ जाएगा, राइट, और ये हमारा बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि 2026 में हम जब अकाउंट्स खोलेंगे अपने, तभी में हमारे पास होगा 800,000 का बैंक लोन। फिर अभी हमने साल में और रीपे कर दिया तो हम और कम कर देंगे बैंक लोन को। ठीक है, ये बात समझ आ गई कैसे हो रहा है? यस मैम। चलो अभी हम और एक करते हैं, ये एसओ ये लेना चाहिए। अभी हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स के साथ हम क्या करेंगे। इसमें क्या दो अकाउंट्स आते हैं, इसमें सारे इनकम अकाउंट्स आ जाएंगे, जैसे रेंटल इनकम, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, और आपके एक्सपेंस अकाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ना रूल चेंज हो जाएगा, इसमें रूल चेंज हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड, all income and or all income and expense all income and expense ledger accounts are closed, ये भी हम उसी तरीके से बंद कर देंगे। and the balances are used to prepare the SOPL, मतलब ये हमारे पास सपोज एक है, दूसरे पेज पे मैं लेती हूँ, ये हमारे पास एक एक्सपेंस अकाउंट है, कोई भी एक्सपेंस ले लो, ये हमारे पास एक एक्सपेंस अकाउंट है, ये आ गया डेबिट, ये आ गया डेबिट। हमारे पास पूरे साल के 200,000 के एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे सपोज 20 था, 20 नहीं लेते, हम लेते हैं 10,000। ठीक है, तो 200,000 के हमारे पास हमारे पास एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे भी 200,000 आ जाएगा। ये 10,000 क्या था मैम? ये 10,000 मतलब सपोज हमारे एक्सपेंस कम हो रहे हैं, आपने सपोज कोई एक्सपेंस भरा रेंट का, ठीक है, आपने सपोज 10,000 ज्यादा भर दिया गलती से, था 30,000, ठीक है, था 30,000, आपने पे कर दिया 40,000, आपको बाद में पता चला मैंने यार ज्यादा भर दिया शायद, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि आपका एक्सपेंस कम हो गया। ठीक है, ओके। इफ ऐसा नहीं है, चलो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेते हैं, इफ हम सीधा समझ लेते हैं कि हमारे पूरे साल में 200,000 के एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड पे जीरो है, कुछ भी हमारे एक्सपेंसेस कम नहीं हो, जो थे वो है। ठीक है, सिंपल ले लेते हैं, हमारे सारे कैश में लिख देती हूँ, सारे एक्सपेंसेस 200,000 के थे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंसिंग फिगर, ये सेम ही आएगा मैम। पूरा आ जाएगा 200,000। तो ये रूल क्या है, अभी अभी ध्यान से आप समझना, ये रूल क्या बोलता है, जब भी कोई इनकम हो या कोई एक्सपेंस हो, दोनों के लिए, ओके, इनकम एंड लिख देती हूँ, इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ये शब्द नहीं लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, और ये अमाउंट जो है 200,000 की, वो सीधे सीधे आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में चली जाएगी, ये आपके एक्सपेंसेस फॉर द ईयर हो गए। और नेक्स्ट ईयर जब आप अकाउंट खोलोगे, तभी आपका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ये अमाउंट पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में चली जाएगी, क्योंकि आप एक्सपेंस तो ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 200,000 का खर्चा था, हमने प्रॉफिट और लॉस में ये 200,000 का खर्चा दिखा दिया। ये एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस, हाँ बताइए, ये जो बैलेंस क्रेडिट है साइड का ना, बैलेंस मैम फिर प्रॉफिट अकाउंट में चला जाएगा, एक्सपेंस का जो डेबिट का। हाँ
मतलब आप यहाँ पे देखो, वापस एक बार मैं लेती हूँ, ध्यान से सुनना और फिर मुझे बताओ आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या? वापस हम देखते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम दो अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमने पहले क्लोजिंग बैलेंस वाला देखा, तो हम कैसे कर रहे हैं, लेट्स सी। तो ना एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज सैलरी। ठीक है, हम सैलरी अकाउंट लेते हैं। सैलरी पेड इन द ईयर 500,000। ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, अग्री करोगे आप, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट बनाओ, सैलरी अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे क्या लिख लूं मैं, कैश 500,000। ये हमारी टोटल सैलरी हमने साल में पे की है, ये बराबर है, ये समझ गया। यस मैम। हाँ, क्रेडिट साइड पे जीरो है, हमने कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड पे एंट्री ही नहीं है। तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 500,000 और 500,000। अभी ध्यान से सुनना, मुझे बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना, मैं 500,000 लिख के छोड़ नहीं सकती। मुझे बैलेंसिंग तो करनी है, तो मुझे यहाँ पे 500,000 तो लिखना ही है। बट यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट और लॉस। और ये अमाउंट चली जाएगी आपके SOPL में एज एन एक्सपेंस। इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, ये खत्म हो गया, ये अकाउंट खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर जब वापस आप ये अकाउंट खोलोगे, तभी वो जीरो से स्टार्ट होगा। जब आप नेक्स्ट ईयर सैलरी अकाउंट खोलोगे, तभी वो जीरो से स्टार्ट होगा, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आई। यस मैम। क्योंकि मैंने सारे 500 जो भी 500,000 की सैलरी थी वो मैंने भर दी, आई हैव पेड इट इन द ईयर। तो मेरे पास क्या ओपनिंग बैलेंस है, अभी कुछ होना चाहिए। लॉजिकली लॉजिकली सोचो। नो मैम। तो ये होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर है, ये आपका SOPL में चला जाएगा एज एन एक्सपेंस। इनकम के लिए भी सेम चीज है। इफ आपको यहाँ पे इनकम दी होती, ठीक है, हम यहाँ पे और एक लेते हैं। तो कमीशन इनकम रिसीव्ड इन द ईयर 220,000। ये मेरी कमीशन अकाउंट आ गया मेरा। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इनकम है अभिमन्यु, तो क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे लिखना चाहिए, राइट। यस मैम। तो मैं लिख लूंगी कैश, आपका आ गया 220,000। मुझे क्लोज तो करना पड़ेगा, लेजर क्लोजिंग ऑप्शनल नहीं है, वो तो हर अकाउंट के लिए आपको करना ही है। 220,000, यहाँ पे भी 220। अभी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। मुझे 220,000 यहाँ पे एक बैलेंस लगाना पड़ेगा, पर मैं क्या लिखूंगी, प्रॉफिट और लॉस। और ये चला जाएगा SOPL में, या तो आप जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोलते हो इंडियन सिस्टम, तो ये चला जाएगा SOPL में और अकाउंट बंद हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है। यस मैम। और ये कौन सा बैलेंस है अभिमन्यु, ये कौन सा बैलेंस है, जब क्रेडिट साइड बड़ा होता है डेबिट से, तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मैम। क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है क्या मैम? कैसे, क्या क्रेडिट साइड बड़ा है ना, यहाँ पे हमने तो बैलेंसिंग लगाया था, ये तो जीरो था। ओके तो क्रेडिट देखो साइड ये ही एक है। बार देख लेना आप ना, ये अच्छे से देख लेना, ये वाला देखो। जब आपका क्रेडिट साइड बड़ा होता है डेबिट से, तब जो भी आप बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलोगे, क्रेडिट बैलेंस। और जब आपका डेबिट साइड
इसका लॉजिक बता दूं मैं आपको, आपको याद रखना होगा ना, तो आप कैसे याद रख सकते हो। देखो, मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है, इसके लिए मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ी, इसीलिए डेबिट में मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ी। तो क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड बड़ा है, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस। ये लॉजिक याद रखोगे? यस मैम। तो इसमें कौन सा बैलेंस होगा फिर, ये बताओ मुझे। मेरा डेबिट बड़ा था, इसलिए मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ी, तो ये कौन डेबिट सा बैलेंस। balance? ये डेबिट बैलेंस। ये आपको क्यों याद रखना है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस में ना आपको ये लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट के नीचे लिखना पड़ेगा या तो क्रेडिट के नीचे लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये बैलेंस होता क्या है। इफ मैं डेबिट बढ़ा है और क्रेडिट में आप बैलेंसिंग कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बढ़ा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, और आपको डेबिट में बैलेंसिंग करनी पड़ रही है, तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये क्लियर है? देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। डू नॉट शो अ क्लोजिंग बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया, डू नॉट शो अ क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, ये नहीं दिखाना है आपको। द बैलेंसिंग फिगर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड विल बी लेबल्ड एज प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रॉफिट और लॉस लिखना है। दिस मीन्स ऑन द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जब आप नया अकाउंट बनाओगे नेक्स्ट ईयर के लिए, इनकम एंड एक्सपेंस लेजर अकाउंट्स, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंस के लेजर अकाउंट्स है, दे विल नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, उनको ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है। द बैलेंसेस एट द ईयर एंड, जो भी आपके ईयर एंड के बैलेंसेस हमने जैसे कैलकुलेट किए, ये सारे ट्रांसफर हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। Why? To calculate profit for the accounting year. ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो ना मैं क्या करूंगी, आई विल गिव यू, जो भी हमने आज का किया है मैं आपको पीडीएफ देती हूँ, आप आराम से वापस पढ़ो, सारी चीजें अच्छे से समझ लो। ठीक है। ओके मैम। मैम, रिवीजन के लिए नोट्स के लिए मैम कप्लान की फोटो कॉपी निकलवाऊँ मैम, या आप प्रोवाइड करवाओगे कोई? अच्छा, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, मैं एड्रेस करती हूँ ये चीज।